Okay, so let's start. I think we'll do half session today, or we'll do complete next time. તમે બધા મને કેવું તે પ્રમાણે મને કઈ વાંધો નહીં. ના પ્લીઝ કન્ટિન્યુ સંદીપ પ્રભુ, જે તમને ઠીક લાગે એ પ્રમાણે કરો. હરે કૃષ્ણ. તમે કન્ટિન્યુ કરો, વાંધો નહીં. તો અત્યારે જ કન્ટિન્યુ કરીએ. તમારી ઈચ્છા. વી આર ગુડ. ઓકે. So chalo આપણે actually છે ને first we'll try to cover till 11 જેટલું થાય એટલું, and then we'll do recap next week so people can we'll ask people to listen to that and then come so we can continue from next weekend, right? So એટલે આજનો બી આપણો time waste નહીં થાય. Correct? Sure. Okay, so we'll start with our you can see my screen. સોનલમાં તો જે આટલા વખત પછી આવ્યા ને એટલે આપણે ક્લાસ તો લેવા જ પડશે, નહીં તો પાછા ગાયબ થઈ જશે. Perfect. So મંગલાચરણ શરૂ કરીએ આપણે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાખયા ચક્ષુરં મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साद्ग्रजातं सहगना रघुनाथामृतां सतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगना ललिता श्री विशाखावृतांश्च. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. श्री नित्यानंद अवधूतेन्दुर्वसुध प्राण वल्लभ जानव जीवित पति कृष्ण प्रेम पद प्रभु. पद्मावती सुत श्रीमान सचिनंदन पूर्वजः भावोन्मत्र जगत्राता रक्त गौर कलेवरः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो राधे वृषालक्षी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुंज विहारिणी. राधे मेरी स्वामिनी मैं राधाजू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास. सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार.
वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So thank you everyone for joining us after change time. But आप सबने बहुत अच्छे से गोवर्धन सेलिब्रेट किया. I know this time, so मेरा focus थोड़ा off है because my laptop screen is broken, so I'm putting to the TV as well. So I'm looking at TV and talking to you. So I hear that Dev Prabhu, very good celebration you did into Barrie as well. And we had last week into Bracebridge, and now this weekend we have in Stratford. So I'll be going to Stratford today as well. I mean, like tomorrow. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. It's all about the Krishna Krupa, right? We did first time, but with all people, devotees, cooperation, it's went well. Yeah, and I saw you made a beautiful Govardhan, the tall and huge one. The Pinky Mata. The Pinky Mataji did a lots of hard work on that. Which Mataji? Pinky Ben. Oh, barabar. Very nice, very nice. It was very good. I saw the videos and everything. Someone sent me the picture as well. It was so beautifully done. Yeah, she's an artist. She's an artist. Very good, very good. Nice. A lot of offerings as well. Kirtan and everything. It was fantastic. So this is the class actually I wanted to give before we start this Govardhan celebration. But even I was busy into my house Govardhan celebration, so I could not conduct at that weekend. But now we got the time to do it this weekend. So Govardhan actually, when we try to understand any Sandhi Vichhed, we do it. So the Govardhan का मतलब क्या है? Go plus Vardhan. Go अर्थात मन. जैसे आपने सुना होगा Goswamis. So what is the meaning of Goswamis? Right? If you go to Vrindavan, you hear this word very, frequently, that Goswami this, Goswami that. He is Chandan Goswami, he is Padmanabh Goswami, he is Pundrik Goswami, he is Rupa Goswami, Sanatan Goswami. You go to their temples and everything. So Goswami is basically a surname. And here you see Govardhan. So Govardhan, Goswami. So what is the meaning of Govardhan? So Go plus Vardhan, Go plus Swami. So Go arthat man. जो मन is basically the master or the king of all the senses. हर इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन. So जो मन के स्वामी है उसे गोस्वामी कहा जाता है. जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने मन को कंट्रोल में किया हुआ, जिसने अपने मन को वशीभूत किया हुआ, वश में रखा हुआ है. राइट? कृष्ण कहते हैं भागवत गीता में कि जिस इंसान ने अपने मन को वश में किया है उसके लिए वो मन मित्र की तरह काम करता है. लेकिन जिस इंसान का मन अपने वश में नहीं है उसके लिए वही मन शत्रु की तरह काम करता है. सो ये मन को जिसने वश में किया उसे गोस्वामी कहते हैं. और मन का जो वर्धन करे अर्थात मन रूपी इंद्रिय का जो भक्ति रूपी आहार से पोषण करे उसे गोवर्धन कहा गया है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ गोवर्धन. गोवर्धन अर्थात मन रूपी इंद्रियों का भक्ति रूपी आहार से पोषण. सो जब आप में से कितने लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा की है या गोवर्धन देखने गए हैं? You can just tell me your name. Yes, Prabhu. I did. Yes. Who else? Who else done the Govardhan Parikrama? Prabhuji, we did for 2-3 times. Perfect, Mataji. Yeah, I know about 2 of you. But yeah,
So Shweta Mataji, Sonal Mataji, Hiran Prabhu, Jigisha. I don't know who is with the iPhone. So because I don't see the name, it just says iPhone. So, and there is someone from V as well. So अगर आप बताएं आपने की है गोवर्धन परिक्रमा या देखा है गोवर्धन, कौन कौन सी लीला स्थली है वहां पे? Not yet. We want to, but let's see. ભગવાનની કૃપા જેવી થશે એમ. ના ના, perfect. હજુ સારા કર્મનો સંચાર નથી થયો એટલે બોલાવા નથી આવતો. ના, આ ગોવર્ધન સાચી વાત છે. એમાં મજાક થોડી, સાચી વાત છે. કર્મ નથી Yeah, એટલે that's true. That's એટલે true. બોલાવતા નથી આપણને ત્યાં. ના, actually Yeah. હિના માતાજી ગોવર્ધન છે ને, and વૃંદાવન it works on a different formula. બીજી જગ્યાએ તમે કર્મોથી જઈ શકે, તમારા પુણ્યથી જઈ શકે. ગોવર્ધન અને વૃંદાવન તમારે ખાલી ઈચ્છા કરવાની ઠાકોરજીની સામે કે યુ નો એ તો ઠાકોરજી ઈચ્છા કરી દીધી છે. ઈચ્છા એકદમ તમે એકદમ હમણાં સોલિડ કે પગ મૂકવાનો, ત્યાં જવું હોય તો જ મૂકવાનું, એવું છે. હા, તમે ગોવર્ધન સેલિબ્રેશન કર્યું ને હમણાં, so he's gonna call you for sure. Oh, thank you. Oh my God. Then moksha will come. I'll get the moksha. I definitely tell them. So, why it is basically मन रूपी इंद्रियों का भक्ति रूपी आहार से पोषण कैसे करते हैं गोवर्धन? क्योंकि गोवर्धन की दो क्वालिटी है. एक तो पहले तो वो हरिवरीय है. श्रीमद् भागवतम में जो भक्तों का वर्णन आता है उसमें बहुत कम भक्तों के सामने डेजिग्नेशन लगती है हरिवरीय. जैसे हमारे सामने लगती है डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सब डेजिग्नेशन रहती है, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, प्रेसिडेंट, ओनर एंड ऑल दिस स्टफ. सो हरिवरीय एक डेजिग्नेशन है जो गोवर्धन के सामने लगाई जाती है श्रीमद् भागवतम के हिसाब से. तो गोवर्धन को हरिवरीय कहा गया है. क्यों? हरिवरीय अर्थात जो हरि को सबसे प्रिय है, जिसका वर्ण हरि ने किया हुआ है. सो दिस इज गोवर्धन. तो एक तो वो बहुत बड़े भक्त है, हरिवरीय है. तो अगर भक्त के संग में आप रहोगे तो आपको भक्ति रूपी पोषण अपने आप मिलता रहेगा, उनकी ऊर्जा से, उनकी फ्रीक्वेंसी से, उनके एसोसिएशन से. When you are connected and come in contact with the devotees, so देखिए आप सबसे बड़े डिवोटी से अगर कांटेक्ट में आएंगे तो आपका पोषण अपने आप भक्ति रूपी बढ़ना शुरू हो जाएगा. दूसरा बात यह है कि गोवर्धन में इतनी रसस्थली है और इतनी स्थलियां हैं जिसमें बहुत सारी लीलाएं आज भी होती रहती है. मैं अगर ज्यादा पीछे नहीं जाऊं तो आज से 35 या 40 साल पहले की बात है. देयर वाज वन ऑफ द डिवोटी जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के एसोसिएशन में थे. उन्होंने भाई जी की बुक रीड की और वहां से पता चला कि गोवर्धन में आज भी ठाकुर जी नित्य निवास करते हैं और नित्य विचरण करते हैं. तो उनको लगा कि देखिए सबसे बड़े गुरु तो दाऊ जी है, राइट? आदि गुरु इज शेषनाग, दाऊ जी खुद. सो बोले अगर मुझे दीक्षा लेनी है तो सिर्फ दाऊ जी से ही लेनी है. तो उसने ये प्रण लिया कि अगर मैं दीक्षा लूंगा तो दाऊ जी से लूंगा, नहीं तो मैं गोवर्धन में अपने प्राणों का त्याग करूंगा. तो उसने क्या किया, दंडवत परिक्रमा शुरू की. बोले जब तक दाऊ जी आके मुझे दीक्षा नहीं प्रदान करते, दर्शन नहीं प्रदान करते, तब तक मैं गोवर्धन की परिक्रमा करता रहूंगा, क्योंकि दाऊ जी गोवर्धन पे नित्य निवास करते हैं ठाकुर जी के साथ. कुछ तो 3 वीक के बाद दाऊ जी खुद मध्याह्न के समय गोवर्धन के ऊपर से नीचे आते हैं, उसके मस्तक के ऊपर अपना चरण पधराते हैं और उसे कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्रदान करते हैं. तो गोवर्धन आज भी लीला स्थली, और बहुत सारे, अगर मैंने फिर भी इस क्विज के अंदर बहुत कम लोकेशंस को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये क्विज मैंने प्रिपेयर किया है बेसिकली स्ट्रैटफोर्ड के लिए. सो आई डोंट हैव मच टाइम टू गो थ्रू, तो मैंने बहुत कम लोकेशंस को पॉइंट आउट किया है. लेकिन अगर हम गोवर्धन के हर एक रसस्थली को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मिठास और कितना प्रेम है एक एक स्थली के अंदर. तो अगर आप जब गोवर्धन जाएं तो उससे पहले ये सब जगहों को समझ ले, कहाँ कहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ कहाँ पे किसके दर्शन करने हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी छुपी हुई चीजें हैं, तो आपको बहुत आनंद आएगा और आपका भी पोषण होगा भक्ति रूपी आहार से. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. तो जैसे मैंने कहा, वैसे तो पूरा गोवर्धन ही रस स्थली है, भगवान श्री कृष्ण और गोप गोपिकाओं के क्रीड़ा का स्थल. जैसे मैंने कहा, गोवर्धन हरिवरीय भी कहा गया है भागवतम में. कहते हैं कि राधा रानी का प्रेम अगर पाषाण या पर्वत का स्वरूप धारण करे तो वो गोवर्धन कहलाएगा. सो अगर मेरा आपसे सवाल है इसके अंदर कि भगवान ने इंद्र का वध किया, भगवान ने इंद्र का वध नहीं किया. देखिए, जितने भी राक्षसों ने वृंदावन के अंदर अटैक किया, वृंदावन के अंदर आए जितने भी राक्षस,
प्रभु ने सभी राक्षसों को एक क्षण के अंदर मार दिया। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से उसके प्रिय ब्रजवासी जनों के ऊपर संकट आई, विपदा आई, राइट? एक दिन के लिए भी सही, एक घंटे के लिए भी सही, एक क्षण के लिए भी सही, कृष्ण ने उन सबको मार दिया। लेकिन इंद्र ने तो पूरे गांव, पूरे व्रज को 7 दिन तक प्रताड़ित किया। 7 दिन तक, 7 दिन तक उस पे कौन से मेघ बरसाए? सिमंतक, राइट? नहीं, सिमंतक नहीं, अपने व्हाट इज दैट क्लाउड? अंकर्ण, सभा, समर्थका, संवर्तका, यस माता जी। तो संवर्तका क्लाउड से जो क्लाउड, जो रेन प्रलय के टाइम पे यूज होते हैं, प्रलय के समय पे यूज होते हैं पूरी सृष्टि को डुबो देने के लिए, उस भीषण क्लाउड को यूज किया गया वृंदावन का नाश करने के लिए। और वो भी एक क्षण के लिए नहीं, 7 दिन 7 रात्रि तक। तो सोचिए फिर भगवान ने इंद्र का वध क्यों नहीं किया, राइट? आप मुझे इसका कोई उत्तर दे सकते हैं? इज दैट एवर बॉदर यू? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कभी कि 7 दिन तक कृष्ण ने हर एक का वध किया, जिसने क्षण भर के लिए भी ब्रजवासियों को हैरान किया, परेशान किया। लेकिन ऐसा क्या है कि भैया इंद्र ने 7 दिन तक ऐसा किया ब्रजवासियों के साथ, तो भगवान ने कुछ नहीं किया, इंद्र को मारा नहीं, अर्थात सहते रहे वो। और इसमें ब्रजवासियों के साथ वो खुद भी सहे, क्योंकि 7 दिन तक 7 रात्रि तक उन्होंने अपने हाथ के ऊपर गोवर्धन को धारण करके रखा, खड़े रहे प्रभु, बिना खाए बिना पिए हुए। तो ऐसा कोई लॉजिक है, ऐसा कोई आपके अंदर थॉट है कि व्हाई कृष्णा हैज डन दैट? व्हाई ही डिडंट किल? ही कुड हैव किल इंद्रा इन 1 second and get another Indra appointed immediately, but he didn't do that. क्यों? कोई है? इंद्र देव थे इसलिए। नहीं, देव होने से क्या होता है? देव तो एक डेजिग्नेशन है, राइट माता जी? जैसे कि राक्षस अभी तक आए थे, जैसे कि पूतना। ना, नहीं, और क्योंकि राक्षस उसके कारण है ना, राक्षस एक मिनट, और देव एक डेजिग्नेशन है। ऐसा जो मूवी में दिखाता है कि राक्षस के सींग होते हैं, वो गदरू पे होते हैं, ऐसा नहीं है। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल आल्सो, मोस्ट ऑप्युलेंट। सो श्रीमद् भागवतम कहीं नहीं कहता कि राक्षस आर बैड लुकिंग पीपल। राक्षस और देव, maybe the good karma is more than the this karma. okay. As per my thoughts, I think Lord Krishna wants to break Indra's ego to whatever power he has. It's nothing against him. I think that's what he is trying to make him awareness. It's my opinion. I don't know. I am right or wrong. ईगो प्रभु, तो राक्षस को भी था, इवन कंस को भी था कि मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई हरा नहीं सकता। Yes. Someone else? नहीं, बिकॉज उसके कारण है ना, ये लीला के कारण सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे ना उधर पर्वत, गोवर्धन पर्वत के नीचे। नहीं, sorry, someone trying to speak? नो, सो लीला के कारण सब लोग एक साथ एकत्रित तो हुए, लेकिन देखो सिंपल सी बात है कि सब संकट में भी आए, राइट? सो देखिए, इसमें ना इसको समझते हैं हम श्रीमद् भागवतम के श्लोक के जरिए। तो देखिए, श्रीमद् भागवतम आप में से सबको पता है, राइट? श्रीमद् भागवतम क्या है? जो बोलते हैं वेदों का पका हुआ फल जो है वो श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम का हर एक श्लोक अपने आप में एक सिद्ध है। आज हम उसी श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेते हुए उसी समुद्र का मंथन करके एक मोती रूपी श्लोक को हम निकालेंगे और उसको फिर समझेंगे, उसके हर एक शब्द को समझेंगे, और जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हमारे अंदर जो है वो क्लियर होंगी। सो ये जो श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम जब परीक्षित महाराज को समझाते हैं, तो श्रीमद् भागवतम का जब स्टार्ट होता है, राइट, स्कंद नंबर 2, चैप्टर नंबर 10, टेक्स्ट नंबर 1, श्री शुक उवाच, क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण भूतयः मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये एक ऐसा श्लोक है जो एक जिप फाइल है। इस श्लोक के हर एक शब्द के अंदर श्रीमद् भागवतम के स्कंद का निरूपण किया गया है, या कहो कि श्रीमद् भागवतम का इंडेक्स है। आपको श्रीमद् भागवतम के अंदर क्या मिलेगा, पूरी आपको 12 स्कंद के अंदर श्रीमद् भागवतम के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलनी है, वो आपको इस श्लोक में बता दी गई है।
कि भैया चलिए शुरू करते हैं। अत्र सर्गो अर्थात सर्गो, सर्गो का मतलब क्या है? भगवान की सृष्टि, कि जिसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मा की रचना का समावेश होता है। आपने अनंत कोटि ब्रह्मांड तो सुना होगा, राइट? अनंत कोटि ब्रह्मा, तो कितने ब्रह्मा है पता है आपको किसी को? ब्रह्मदेव, जो हम देखते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें जो ब्रह्मदेव बुजुर्ग है, किसी को आइडिया हाउ मेनी ब्रह्मास आर देयर? हर सृष्टि का प्रभु एक ब्रह्मा, लाइक यस, तो अनंत कोटि सृष्टि है और उसके अनंत कोटि ब्रह्मा है। इट इज लाइक इफ आई हैव say for example on this planet we have infinite countries, so हर एक कंट्री का एक प्रेसिडेंट रहेगा। सिमिलरली इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि लोक है। उस हर एक लोक के अंदर एक ब्रह्मा है जो इस पूरे 14 भुवन को प्रिपेयर करता है, 14 भुवन का इंजीनियरिंग करता है। So there are so many Brahma, right? So इन सब की इंफॉर्मेशन आपको श्रीमद् भागवतम में मिलेगी। और दूसरी बात, ये जो सृष्टि बनी है, तो आप सबको पता है कि भगवान विष्णु, राइट? सो हाउ मेनी विष्णुज आर देयर? ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देयर इज वन विष्णु, भगवान विष्णु और भगवान नारायण इज लाइंग हियर। 14 બ્રહ્માંડના સ્વામી એક જ છે વિષ્ણુ. हाँ, પણ તેવા અનંત બ્રહ્માંડ છે માતાજી. There are તો અનંત પણ વિષ્ણુ તો એક જ છે. No, Vishnu ત્રણ છે. There are 3 categories of Vishnu, right? Oh. If you see in this picture, there is one Vishnu or one Narayan is lying here. And જ્યારે Vishnu breathe out કરે, જ્યારે તમે કોઈ દિવસ if you have seen into winter, when you go in front of the sun rays and you do or you breathe out, you see lot of particles from your breath coming out, right? Yes. Similarly, when the Mahavishnu breathe out, there are innumerable particles comes out. Now this each particle consists of one lok, 14 lok is called one universe. That each particle has one universe. And each particle ni andar 14 loks hoy છે, જેમાં 7 પાતાળ લોક, એક આપણું ભૂલોક અને બાકી के 6 है वो स्वर्ग लोक, means upper loks, right? So ये एक विष्णु है जिसके अंदर से when he breathe out, there is lot of particles comes out, lot of bubbles comes out. You can see in the picture there are lot of bubbles, they are all universes. और हर यूनिवर्स के अंदर आपको वापस से एक ठाकुर जी दिखेंगे और उसके चरण चंपी करते हुए लक्ष्मी माता है, राइट? तो वो जो है हर पार्टिकल के अंदर, जैसा आपने बताया कि इस 14 भुवन के स्वामी भगवान विष्णु है, वो विष्णु का नाम है गर्भोदकशायी विष्णु, राइट? फिर वही विष्णु अपने आप को एक्सपांड करते हैं कहां पे? हर जीव के अंदर परमात्मा के स्वरूप में। उसको कहा गया क्षीरोदकशायी विष्णु, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। सो 3 प्रकार के विष्णु है। एक महाविष्णु, यस सॉरी नहीं, मैं मेमोराइज कर रही हूँ। या एक महाविष्णु है जिसको हम कर्णोदकशायी विष्णु कहते हैं, जिसके अंदर से बहुत सारे यूनिवर्स प्रकट होते हैं, अनंत यूनिवर्स, राइट? और उस यूनिवर्स के अंदर फिर और एक विष्णु का एक्सपांशन होता है जिसे गर्भोदकशायी विष्णु कहा गया है। फिर वही विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, अपने आप को सुपर सोल अर्थात परमात्मा के रूप से हर एक जीव के अंदर स्थापित करते हैं, जिसे क्षीरोदकशायी विष्णु कहते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन आपको श्रीमद् भागवतम में मिलेगी। तो इस सर्गों का मतलब है भगवान की सृष्टि। विसर्गस्य अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि। तो भगवान ने सब यूनिवर्स बना दिए, अनंत यूनिवर्स बना दिए, फिर हर एक यूनिवर्स में खुद चले गए, जिसे गर्भोदकशायी विष्णु कहा गया है। और उस विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट होता है, जिस कमल के ऊपर ब्रह्मदेव का प्रागट्य होता है। और फिर वो ब्रह्मदेव उस यूनिवर्स के अंदर 14 भुवन का निर्माण करते हैं, जिसे हम 7 पाताल लोक कहते हैं, एक अपना भूलोक और बाकी के 6 हायर प्लैनेटरी सिस्टम। पाताल लोक का नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एवं पाताल। उसके ऊपर आता है भूलोक, उसके ऊपर आता है भूवर। भूवर जो लोक है उसके अंदर राक्षस और भूत रहते हैं। इसीलिए हमें इस पृथ्वी के ऊपर जो भूत दिखते हैं, देवता बहुत जल्दी से नहीं दिखते, लेकिन आपको भूत आसानी से मिल जाते हैं। यू डू ब्लैंच इट, यू विल गेट द घोस्ट, राइट?
ये सब बहुत सारी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, भूत को वशीभूत करते हैं, किसी के ऊपर भूत छोड़ते हैं। भूत और राक्षस बहुत इजीली इस लोक पे आते हैं क्योंकि उनका जो लोक है वो अपने से नेक्स्ट लोक है। द नेक्स्ट लोक इज भूअर लोक। फिर भूअर लोक के ऊपर है स्वर्ग लोक, जिसे हम इंद्र लोक भी कहते हैं, जिसके अंदर सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं। सो भूलोक अपने से तीसरा लोक है सिर्फ, राइट। एंड उसके ऊपर है महरलोक, उसके ऊपर है जनलोक, उसके ऊपर है तपलोक और उसके ऊपर है सत्यलोक। सत्यलोक किसका है? ब्रह्मदेव का। वहां पे लॉर्ड ब्रह्मा विराजमान होते हैं, राइट। सो देखिए, कुछ लोग जब हम सोचते हैं कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, कुछ लोग हमारे बड़े जब बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं इस धाम से, तो हम उसके आगे पीछे लिखते हैं स्वर्गवासी XYZ पटेल, राइट। तो अगर कोई भक्त है, अगर आप उसके सामने स्वर्गवासी लिखोगे तो उसके लिए वो बहुत ही शर्मनाक बात होगी, उसके लिए बहुत शर्मनाक इन द सेंस व्हाट यू विल से, वो दुखी होगा क्योंकि उसका लक्ष्य स्वर्ग था ही नहीं। क्योंकि स्वर्ग तो यहाँ से सिर्फ तीसरा लोक है। और क्या प्रॉब्लम है कि स्वर्ग, ये जो जितने लोक है, नीचे के 7 पाताल लोक, अपना भूलोक और ऊपर के जितने लोक, इन सब का विनाश होगा कब? जब वापस महाविष्णु ब्रीथ इन करेंगे। जैसा आप देखोगे उस सूर्य प्रकाश की लाइट में, व्हेन यू ब्रीथ आउट you get lot of particles out, and when you breathe in you get lot of particle ins. Similarly, when the Mahavishnu is going to breathe in, this all universe is going to collapse and they're coming inside. So this all planet is going to finish. Then again he's going to breathe out, all planet is going to create it. See the beauty of Lord. और उनका breathe in breathe out कितना बड़ा कि इतने अंदर कितने कितने मनवंतर निकल जाते हैं, right? Just imagine how big it is. ये इंफॉर्मेशन भी आपको श्रीमद् भागवतम के अंदर मिलेगी, जिसे हम विसर्गस्य कहते हैं। तीसरा जो वर्ड है वो स्थानम। स्थानम का मतलब है कर्म के अनुसार हर एक जीव का स्थान विशेष। जैसे जैसे आपने कर्म किए हैं उस हिसाब से आपको इस 14 प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर किसी के घर में, किसी के जगह पे आपको काम मिलेगा, किसी के घर में जन्म मिलेगा, किसी के आप भाई बनोगे, किसी के आप पति बनोगे, किसी के आप पत्नी बनोगे, किसी के आप माता पिता बनोगे, किसी के कोई आपके माता पिता बनेगा। सो वो जो स्थान है डिसाइड करेगा आपके कर्म। सो स्थानम इज बेसिकली कर्म अनुसार हर एक जीव का स्थान विशेष। तो देखिए श्रीमद् भागवतम में क्या क्या आएगा? अत्र सर्गो विसर्गस्य। सर्गो हमने समझा, विसर्गस्य हमने समझा स्थान, हर एक जीव का स्थान। दूसरा है पोषण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोषणम अर्थात जो श्रीमद् भागवतम का जो मेजर सेक्शन है ना, वो पोषणम के ऊपर है मैं कहूंगा, क्योंकि पोषणम का मतलब है भगवान के द्वारा अपने भक्तों का विशेष रूप से संरक्षण, प्रोटेक्शन। अगर कोई भगवान का भक्त है और अगर वो गलती भी करता है तो भगवान उसके ऊपर विशेष रूप से कृपा करते हैं। जैसे अजामिल के ऊपर की, अजामिल पहले भगवान का भक्त था, भगवान नारायण की शिला का अभिषेक करता था, भगवान की पूजा करता, तुलसी चंदन अर्पित करता था। फिर जैसे बड़ा हुआ एक वेश्या के संग में आया और उसका पतन हो गया, राइट। पतन होते गया, लेकिन फिर भगवान ने क्या किया? भगवान ने फिर कहा अच्छा मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता अर्जुन, इसलिए भगवान ने किसी संत महात्मा को उसके घर पे भेजा खाने के बहाने। संत महात्मा ने उसके घर पे प्रसाद पाया और जब अजामिल ने बताया कि मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूं, तो संत ने उसके बदले उससे कहा कि मुझे एक वचन दो कि तुम्हारा जो अगली संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रखोगे। फिर नारायण के नाम रखने से जब वो अजामिल बार बार नारायण आओ, नारायण बैठो, नारायण सो, नारायण चलो खेलते हैं, नारायण नाम का उच्चारण करते करते अजामिल ने इस जगत से सुप्रीम गति को प्राप्त किया, भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो ये भगवान का विशेष लक्षण है पोषणम। वो अपने भक्त का संरक्षण करते हैं। एक बार जो भगवान की शरण में आ गया, राइट, भगवान उसे फिर छोड़ते नहीं, अपितु उसे दूसरा मौका देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है चित्रकेतु का। चित्रकेतु का जब पतन हुआ, श्रीमद् भागवतम का 6वां स्कंद, चित्रकेतु का जब पतन हुआ, जब उसे माता दुर्गा, माता गौरी का श्राप लगा कि जाओ तुम जाके राक्षस योनि में जन्म लो, तो बहुत महाकाय विशालकाय राक्षस बना। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसे भगवान की भक्ति स्मरण आ गई एंड में, और फिर उसने भगवान की बहुत प्यारी स्तुति की, और वही स्तुति वल्लभाचार्य संप्रदाय में बहुत फेमस है और उनको बहुत प्रिय है। तो वो स्तुति करके जब चित्रकेतु ने अपने प्राण छोड़े, जिसका नाम था वृत्तासुर, अगले जन्म में जब राक्षस बना, जब प्राण छोड़े तो भगवत धाम को उसको प्राप्त हुआ। सो अगर कोई भक्त गलती भी करता है तो उन्हें इतना अधिक भगवान दंड नहीं देते हैं, अपितु उन्हें अवसर देते हैं। इसे कहते हैं भगवान का पोषणम,
भगवान का पोषणम गुण, अर्थात कृष्णास पार्शलिटी टुवर्ड्स हिज डिवोटीज, राइट। इसके ऊपर मैंने लिखा नहीं, पर एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आया कि आप सबको रामानुजाचार्य के बारे में पता होगा। रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य है, अगर आप श्रीरंगम जाओगे तो श्री रंगनाथन की मूर्ति है वहां पे, वो रामानुचार्य सेवित है। रामानुचार्य भगवान के शेष अवतार है, अर्थात लक्ष्मण जी के अवतार है। राम अनुज, अर्थात भगवान राम के जो अनुज, उसको कहते हैं रामानुज। तो रामानुज आचार्य बहुत बड़े आचार्य थे। उनको भगवान साक्षात उनके साथ खेलते थे, मिलते थे। अगर किसी को गांव में प्रश्न है तो जब रामानुचार्य मंदिर की तरफ जाते थे ठाकुर जी को मिलने के लिए, श्री रंगनाथ जी को, तो जैसे मैं आपसे मिला, मैंने आपको क्वेश्चन बताया नहीं, सिर्फ मैंने आपको इतना कहा कि स्वामी जी मेरी कुछ समस्या है, प्लीज आप ठाकुर जी से उसका उत्तर पूछ लेना। रामानुचार्य उससे पूछते नहीं थे कि क्वेश्चन क्या है, ठाकुर जी को जाके बोलते, ठाकुर जी फलाना आदमी आया था, उसने कहा कि उसे कुछ प्रॉब्लम है, आप अगर उसका उपाय बताए। तो ठाकुर जी कहते, रामानुज उसे जाके कह दो कि उसकी बेटी की शादी फलानी जगह पे फलाने समय पे हो जाएगी। रामानुचार्य बाहर आते थे और उसको ये आंसर देते। सो भगवान रंगनाथन को खिलाते थे वो बैठ के, इतना उनका घनिष्ठ था। तो वही रामानुजाचार्य जब पुरी गए, जगन्नाथपुरी, तो हुआ क्या, वहां पे जो पांडा थे, वहां के जो सेवक थे, वो भगवान की सेवा कुछ डिसिप्लिन से नहीं करते थे। सो देखिए, भगवान की दो प्रकार की सेवा होती है, रागानुगा भक्ति और वैदेही भक्ति। सो रागानुगा भक्ति में होता है प्रेम, थोड़ा छूट छाट हो जाती है, लेकिन वैदिक भक्ति इज वेरी डिसिप्लिन, वेरी स्ट्रिक्ट। उसमें वेदों का सहारा लिया जाता है, वेदों की ऋचाओं का प्रयोग किया जाता है। तो जब देखा कि यहाँ पे जो भक्त है वो फुल डिसिप्लिन से जगन्नाथ जी की सेवा नहीं कर रहे, और ये दाऊ जी के अवतार, शेष के अवतार, तो उनको गुस्सा आया कि लल्ला की सेवा इसी डिसिप्लिन से होनी चाहिए, हाउ डेयर यू टू डू लाइक दिस। बोले, मैं तुम सबको बर्खास्त करता हूँ, कल सुबह मैं अपने शिष्य को यहाँ पे रखता हूँ ताकि भगवान की सेवा अच्छी तरीके से हो। अभी ये सब जो भक्त थे, उनके पास आश्रय तो कोई नहीं, ठाकुर जी का ही आश्रय। उन्होंने जगन्नाथ जी से जाके प्रार्थना की, प्रभु हम कल से कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन हमसे आपकी सेवा मत छीनिए। उन्होंने बहुत रोए गिड़गिड़ाए, तो ठाकुर जी ने आश्वासन दिया कि चलो मैं कुछ करता हूँ। वो जाके रामानुचार्य से मिले। रामानुचार्य जी रात को सो रहे थे, तब रामानुचार्य कि देखिए जैसे भी है मेरे अपने हैं, मैंने इनको अपनी सेवा में स्वीकार किया है। हाँ, उनसे गलतियां हो गई, पर आप उन्हें क्षमा करें। अब ये तो दाऊ जी का काम क्या है, ठाकुर जी को भी डांट लगा। तो बोले, लल्ला तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी सेवा कैसे होनी चाहिए, दे आर नॉट डूइंग इट प्रॉपर्ली, सो आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट दोस मिसकंडक्ट, आई हैव टू फायर देम। ये बातचीत चली करीबन घंटों, लेकिन दाऊ जी टस के मस नहीं हो रहे, रामानुचार्य टस के मस नहीं हो रहे। तो फिर ठाकुर जी ने क्या किया, अब ये इनके बड़े हैं, ठाकुर जी इनसे भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इनका प्रेम भी गाढ़ है। अब इनको भी कुछ नहीं कह सकते, इनके आश्रित भक्तों को भी कुछ नहीं कह सकते। तो ठाकुर जी ने क्या किया, गरुड़ जी का आह्वान किया। गरुड़ जी से कहा कि स्वामी जी सोए, तब उन्हें प्रेम से उठा के मेरे श्री रंगनाथन धाम में पहुंचा दो। तो रामानुचार्य सोए हुए थे, गरुड़ जी ने उनको उठाया, उनको पता भी नहीं चला, और जब सुबह उन्होंने आंखें खोली तो वो कहाँ पे पाए, श्री रंगनाथन धाम के अंदर, श्रीरंगम में, भगवान श्री रंगनाथन के सामने। उस समय फिर श्री रामानुचार्य को समझ गया कि भगवान अपने आश्रितों को छोड़ते नहीं है। उस समय से अगर आप देखोगे श्री संप्रदाय में, तो हम कहते हैं दीक्षा पद्धति, जैसे आप किसी भी संप्रदाय में जाओगे तो दीक्षा कहा जाता है या इनिशिएशन कहा जाता है, लेकिन रामानुचार्य संप्रदाय में उसे दीक्षा या इनिशिएशन ना कह के क्या कहा जाता है, शरणागति। भगवान रामानुचार्य भगवान के इस पोषणम गुण से इतने प्रभावित हुए कि प्रभु मान गया मैं आपको, आप अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। तो देखिए, यह है भगवान का पोषण। भगवान ने रामानुचार्य को वहां पे पहुंचा दिया, लेकिन अपने भक्तों का तिरस्कार नहीं किया। यह है भगवान की पार्शलिटी। उस दिन से रामानुचार्य संप्रदाय में दीक्षा को क्या कहा जाता है, शरणागति। आप शरणागति ग्रहण करिए, आज आपका शरणागति का दिन है। तो दिस इज द रीजन शरणागति, द नेम इन श्री संप्रदाय गॉट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक इंसिडेंट। तो हम चलते हैं देवराज इंद्र। तो देखिए, देवराज इंद्र कौन है, वह कोई दानव है नहीं, वह भगवान के सेवक है, वो एक परम वैष्णव है। कई शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान इंद्र की सहायता हेतु भगवान बहुत बार अवतरित होते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो इंद्र यह गलती कर बैठे, बेसिकली, राइट। ये भगवान के भक्त हैं इंद्र। तो इसका कारण है अहंकार।
हमें कभी कभी भगवान सेवा देते हैं, हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अर्थात कि हाँ मेरा ये सामर्थ्य है, आई एम वेरी पावरफुल, मेरी तो पोजीशन है सोसाइटी में, मेरा ये रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। और हम ये भूल जाते हैं कि भगवान कौन है, जिसके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, इसके हर एक रोम में अनंत ब्रह्मांड छुपे हुए, जो श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं, श्वास समेटते हैं तो ब्रह्मांडों का नष्ट हो जाता है। वो परम दयालु भगवान, वो क्या हमसे इसलिए सेवा ले रहे हैं कि हमारा कुछ सामर्थ्य है या हमारी कोई पोजीशन है या हमारी कोई क्वालिटी है? नहीं, यह अवसर हमें इसलिए दिया गया ताकि हम उनकी सेवा कर सके। जैसे इंद्र को भगवान ने अवसर दिया, भगवान चाहे तो चुटकी बजा के इंद्र को चेंज कर सकते हैं। इंद्र क्या है? एक छोटा सा पोजीशन इन दिस स्पेसिफिक यूनिवर्स। देयर आर इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, उसके अंदर इन्यूमरेबल ब्रह्मा है, इन्यूमरेबल इंद्रज है। तो इंद्र की कोई हैसियत नहीं इन वन सेंस, बट भगवान ने उसे वो पोजीशन दी उस जीव को ताकि तुम उसकी सेवा कर सको। इसी तरह भगवान हमें एक पोजीशन देते हैं संसार के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कुछ पावर देते हैं, कुछ सामर्थ्य देते हैं ताकि हम भगवान की सेवा कर सके, राइट। वरना उनके सामने तो हाथ जोड़े अनंत जीव लाइन में खड़े, राइट, जो हमसे भी ज्यादा सामर्थ्यवान है। वो भगवान से कहते हैं कि प्रभु एक बार हमारी ओर देखिए तो सही, हमें सेवा का मौका तो दीजिए। लेकिन प्रभु कृपालु है, दयालु, इसलिए हमें सेवा का मौका दिए, वरना बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं। लेकिन किंतु हम कभी क्या करते हैं, अहंकारवश यह चीज भूल जाते हैं, जैसे इंद्र भूल गए। यहाँ प्रभु चाहते तो जैसे मैंने कहा इंद्र का वध कर सकते थे, उनको एक क्षण नहीं लगता, उनको तो सिर्फ सोचना भी नहीं है, सोचने से पहले उनकी जो योग माया है वो चीज उसको मैनिफेस्ट कर देती है, तो उनको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। इतने छोटे हैं हम लोग। देखिए इंद्र को बदलना कोई मुश्किल नहीं था, राइट, उनको क्षण नहीं लगता प्रभु को, तो फिर क्या जरूरत थी भगवान को 7 दिन और 7 रात्रि तक गोवर्धन को धारण करके खड़े रहने की? He could have killed इंद्र, राइट, क्योंकि जिसके भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, राइट, उनकी भ्रुकुटी सिर्फ अगर टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाए। लेकिन किंतु भगवान कुछ नहीं बोले, शांत भाव से सिर्फ मुरली में सुर फूकते रहे, एक हाथ से गोवर्धन उठाया और एक हाथ से मुरली बजाते रहे। 7 दिन और 7 रात्रि तक बिना कुछ कहे, इंद्र को हानि पहुंचाए, वो खड़े रहे। क्यों? क्योंकि श्री भगवान का स्वभाव पोषणम, यह भगवान का स्वभाव बीच में आ जाता है। अगर कोई भक्त गलती भी करे, जैसे हमने कहा, तो प्रभु उन्हें इतना अधिक दंड नहीं देते, अपितु अवसर देते हैं, अर्थात कृष्णास पार्शियलिटी टुवर्ड्स डिवोटीज। सो भगवान तब तक गोवर्धन धारण किए खड़े रहे जब तक अपने इस भक्त इंद्र का अहंकार खत्म नहीं हुआ। तो गोवर्धन की लीला इंद्र के मान भंग की नहीं, अपितु भगवान की भक्तवत्सलता की लीला है, भगवान की भक्तवत्सलता की गाथा है। जैसे अर्जुन के लिए भगवान ने लाते खाई, मैंने एक कथा पहले भी कही है। देखिए सारथी बनना इज नॉट जस्ट ड्राइविंग द चैरियट, सारथी बनना में सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक भगवान ने अपनी पीठ पे अर्जुन की लाते खाई। जैसे मैंने कहा कि इतना कोलाहल रहता है युद्ध भूमि के ऊपर कि दे कैन नॉट से अर्जुन टेक अ राइट और टेक अ लेफ्ट, राइट, और गो स्ट्रेट। उनको सिर्फ सारथी को लात मारनी पड़ती है, लेफ्ट में किक किया देन ही शुड गो लेफ्ट, राइट में किक किया ही शुड गो लेफ्ट राइट, और सेंटर में किक किया ही शुड गो स्ट्रेट। दैट इज व्हाट द सिचुएशन। सो भगवान ने सुबह से लेकर शाम तक अर्जुन की लाते खाई, राइट। वैसे ही 7 दिन और 7 रात्रि तक प्रभु ने इंद्र के लिए खड़े रहे और अपने ब्रजवासियों की भी रक्षा की और अपने भक्त हुए भक्त की प्रतीक्षा की ताकि वह संभल जाए, वो संभलने का इंतजार करते रहे। इंद्र 7 दिन तक 7 रात्रि जब उसका घमंड या वॉट एवर इट इज वो चूर चूर हो गया, तब तक भगवान उसकी प्रतीक्षा कर आ जाएगा ना कभी। तो देखिए माता पिता का वैसा ही स्वभाव होता है, अगर 2 बच्चे हैं, कोई झगड़ रहा है, कोई लड़ रहा है, माता पिता किसी को दंडित नहीं करते, दे मेक श्योर कि मेरा बेटा दोनों सही से समझ के आ जाए, विल ट्राई टू प्रोटेक्ट बोथ ऑफ देम। सिमिलरली भगवान ने यहाँ पे ब्रजवासियों की रक्षा की, गोवर्धन को उठा के उनको भी सुरक्षित किया और अपने दूसरा भक्त जो वहां पे थोड़ा नास्टी बन चुका था उसको भी संभाल लिया। अच्छा आ जाएगा, है तो मेरा ही ना, 7 दिन लग गए लेकिन आ गया। लेकिन प्रभु उसमें खुद को गलाते रहे, 7 दिन 7 रात्रि तक खड़े रहे, बस गोवर्धन पकड़ के, बिना खाए बिना पिए, राइट। क्या आप कोई ऐसी कथा बता सकते हैं जहां प्रभु ने स्वयं को मान्यता ना देते हुए अपने 2 भक्तों की सहायता की? दिस इज वन एग्जाम्पल आई हैव कोटेड। आप मुझे और एक एग्जाम्पल बताइए जिसके अंदर प्रभु ने अपने 2 भक्त जो एक दूसरे के सामने हैं,
दोनों का मान रखा लेकिन खुद के मान को तोड़ दिया। ऐसी कोई एक कथा सिमिलर टू दिस इंसिडेंट। जय विजय पार्षद, जय विजय। Not really. बाली और Sorry? बाली और सुग्रीव के बीच में जो युद्ध हुआ था। बाली को तो खत शूट कर दिया था ना भगवान। हम्म, बाली तो भक्त कब बना? एरो लगने के बाद भक्त बना। एरो लगने से पहले तो ठाकुर जी से झगड़ा करने आया था। He was not devotee before that. He got shot and then he got realized. जब तभी शॉट किया तो भी उसको समझ नहीं थी। Then he tried to confront रघुनाथ जी कि तुम्हारी ये गलती है राम, तुमने ये गलत किया मेरे साथ। I was शूरवीर. Then also I don't deserve to shot like this. And he just tried to accuse Raghunath ji. And then Raghunath ji give answer to each and every statements. And then he convinced. रावण विभीषण, रावण को तो मार दिया था ना, मतलब विभीषण को भी ओ मार दिया। या ओ पेला आ पेले बन्ने झाड़ बने छे नंद बाबाना आंगणाમાં નલકુબ। ये तो देवर्षि नारद ना श्राप थी बने। आ तो सेम एग्जाम्पल भगवान ना बे भक्तो छे। भगवान पोते सहता रिया 7 દિવસ 7 રાત ઉચકીને ખાધા પીધા વગર, પણ બંનેને હાથ મિલી ગયા। Similarly, the same example where Krishna, both the devotees were opposite to each other, and Krishna let go his stuff, so both the devotees protected. It's a very good example. प्रभु ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें ब्रह्मा जी सारे वो बच्चों को लेकर जाते हैं, तो वो ब्रह्मा जी को कुछ नहीं कहते और उसकी जगह पे खुद अपने आप को सारे गायें और बच्चों में जो है अपने आप को एक्सपैंड करके जो गांव में सारे बच्चे उनके मतलब वहां पे रहते हैं। लाइक कृष्णा इज देयर इन एवरी हाउस एंड ही डोंट पनिश ब्रह्मा। But where he suffered here, he didn't suffer here. He got the chance actually to be with all the mothers whom he wants to be as a gopi, with all the cows who he wants to be a calf. So there is one example. I'll give one hint. If someone can बोलते ना options देता हूँ मैं आपको। Kurukshetra is a beautiful example. Kurukshetra. Any thought? Bhim, Baldev, and maybe Baldev? Bhim and Baldev. Yeah, કે જે પેલું કેમ આપણે ભીમ ને દુર્યોધન વચ્ચે યુદ્ધ થવાનું હતું ત્યારે બલદેવે કઈ કીધું હતું ને પેલું કે એને આવી રીતે મરાય નહીં ત્યારે કેમ કૃષ્ણ ભગવાને કીધું હતું એ નહીં હોય? No. He didn't suffer over here, right? He didn't lost anything in this one. He just politically correct Dauji that you don't have a right to kill Bhima because you were quiet when Duryodhan did all this thing, so you don't have a right to say anything. He just અર્જુન અને વિદુરજી, you are 50% right. Vidurji has no connection. I think Arjun and Bhishma Pitama. Yes, Prabhuji, Dev Prabhuji, you are 100% right. So there is an incident where day before the fight between Arjun and Bhishma, Karna confronted Bhishma Pitama. Karna accused Bhishma Pitama that you are here just for the fake fighting. You don't want to fight actually. You are just delaying our battle. So Bhishma says, how? He says, you are not killing any Pandavas. He says, when I said that I'm going to kill Pandava, before even starting off the battle, I clarified that I'm not going to kill a single Pandava. So then Shakuni says that, okay, if you cannot kill, but if you are, agar aapki nishtha jo hai सिंहासन के प्रति है, then at least you can, बंदी तो बना सकते हैं ना? तो बोले हाँ बंदी बना सकता हूँ मैं। तो बोले ठीक है, तो वचन दीजिए कि आप अर्जुन को बंदी बनाएंगे। तो बोले ठीक है, मैं वचन देता हूँ। तो बोले इतना काफी नहीं है। तो बोले ठीक है, मैं वचन देता हूं कि मैं अर्जुन को बंदी बनाऊंगा, लेकिन अगर कृष्ण ने शस्त्र उठाया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और every Kaurav was clapping because they know that Krishna has taken a vow that Krishna will never lift the weapon into battlefield of Kurukshetra. और सब जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। Krishna would never break his vow. So everyone was happy that tomorrow
Arjuna is going to be, बंदी बना लिया जाएगा. So when the battle started, the पितामह भीष्म और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध हुआ. और उस समय पितामह भीष्म was so furious, he was so powerful, he was attacking Arjuna from left, right and center. And अर्जुना के पास संभलने का मौका नहीं मिल रहा था. तो उस समय ठाकुर जी ने रथ का पहिया उठाया, उसको सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया, और श्रीमद् भागवत महाभारत में इसका वर्णन बहुत अच्छे से आता है. महाभारत में जो दृष्टांत दिया गया है उसमें कहा गया है कि कृष्ण ran towards भीष्मा like a lion ran towards the calf. उस गति से, उस भीषणता से कृष्ण ran towards पितामह भीष्म. और पितामह भीष्म ने जब इस दृश्य को देखा तो पितामह भीष्म ने अपने सभी हथियार फेंक दिए और हाथ जोड़ लिए कि बोले मान गया जनार्दन, मान गया आपको. कि बोले एक भक्त की रक्षा के लिए और एक भक्त के वचन की रक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पे भगवान के दोनों ही भक्त हैं. अर्जुन भगवान का भक्त है और पितामह भीष्म भी भगवान के भक्त है. तो एक भक्त के जीवन की रक्षा के लिए और दूसरे भक्त के वचन की रक्षा के लिए प्रभु आपने अपने वचन को सूली पे चढ़ा दिया, जो आपने अब तक नहीं किया. आप जाने जाते थे अपने वचन को रखने के लिए. आप अच्युत, भगवान का नाम है अच्युत, द पर्सन हु नेवर च्युत, द पर्सन हु नेवर deviate from his statement, that is अच्युत. आपने अपने उस नाम को भी सूली पे चढ़ा दिया सिर्फ अपने इस दोनों भक्तों की रक्षा के लिए. Right? Moving to the next one. अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषण भूतयः मन्वंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराशा. तो भूतय का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. भूतय एक्चुअली, why I'm not able to minimize it. Okay, you can see me, right? Hello, आप देख सकते हो ना स्क्रीन? No, Prabhu, we can see you. Okay, we are. We were able to see before, though. Now is good. Now Yes, we can Prabhu. see. We can see. Okay. So मनवंतरे अर्थात भूतय, हम भूतय सुन रहे थे. सो भूतय अर्थात शुभ और अशुभ इच्छाएं, जो भावनाएं जो हृदय से उठ के आए, मानो जैसे समुद्र में उठी लहर. राइट? जो भावनाएं हृदय से उठ के आए, हमारे अंदर इतनी भावनाएं निकलती रहती, इतनी इच्छाएं चलती रहती. राइट? जैसे सप्तस्कंद 9वें कैंटो के अंदर भगवान ने शुभदेव गोस्वामी ने शुभ और अशुभ इच्छाओं का परिचय दिया है. राइट? जिसमें हिरण्यकशिपु अशुभ इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रहलाद महाराज शुभ इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. तो हमारे अंदर जितनी शुभ और अशुभ इच्छाएं हैं, उनका द्वंद्व जो है हमेशा चलते रहता है. अशुभ्याय शुभ्याय, हमारा शुभ अगर हावी है, अगर हम मोड ऑफ गुडनेस में है, अगर हमारी बुद्धि शास्त्र से शार्पन है, अगर हम भगवान की भक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो उन शुभ इच्छाएं तो उठेगी अपने अंदर, लेकिन अशुभ इच्छाएं उठेगी, लेकिन शुभ उसको हमेशा हावी कर देगा. शुभ उसको दबा के रखेगा, शुभ उसको निकलने नहीं देगा. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि जो साधु महात्मा होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इच्छाएं नहीं उबलती, उनके अंदर भी इच्छाएं होती है, लेकिन वो अपने वैराग्य से, अपनी साधना की भक्ति से वो उन अशुभ इच्छाओं का निस्तो नाबूद कर देते हैं. तो ये भूतय का मतलब है शुभ और अशुभ इच्छाएं. तो सर्गो समझा, विसर्गस्य समझा, स्थानम समझा, पोषण समझा, भूतय समझा. अभी मनवंतरे, मनवंतरे का मतलब है सर्जन के बाद अलग अलग मनवंतर में भगवान का प्रागट्य. कि मनवंतर अर्थात मनु की सहायता के लिए, मनु अर्थात द किंग ऑफ द यूनिवर्स. सो मनु की सहायता के लिए भगवान अलग अलग मनवंतर में अलग अलग लीलाएं करने के लिए, अलग अलग कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं. वो आपको श्रीमद् भागवतम के अंदर मिलेगा. दूसरा निरोधो, निरोधो का मतलब है प्रलय. देखिए, जीव भौतिक जगत में कितना भी प्रयास करे, कुछ भी आप कर लो, काल के प्रभाव से जगत समाप्त हो जाएगा, समग्र सृष्टि समाप्त हो जाएगी, भौतिक तत्व नष्ट हो जाएगा, बड़े बड़े नगर, साम्राज्य, ये 14 भुवन, 33 कोटि देवी देवता, आपका शरीर, आपकी इंद्रिया,
सब कुछ नष्ट हो जाएगा. Everything is going to be finished when the death is gonna come, when the planet is gonna be submerged into the water, when the pralay is gonna come, everything is gonna finish. सब कुछ समाप्त हो जाएगा जब भगवान संकर्षण जो अनंत शेष है उसके मुख से गगनचुंबी ज्वालाएं प्रकट होगी, जिसे हम प्रलय कहते हैं, जिसे हम डूम्सडे कहते हैं, राइट. लेकिन एक चीज है वो समाप्त नहीं होगी. एनी आइडिया? देखिए सब कुछ नष्ट हो जाएगा जैसे कहा. क्या क्या नष्ट होगा? जगत समाप्त हो जाएंगे, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, भौतिक तत्व नष्ट हो जाएगा, बड़े बड़े नगर, साम्राज्य, आपका घर, आपकी जमीन, आपके बिजनेस, एवरीथिंग, 14 भुवन, सभी देवी देवताएं मर जाएंगे, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, इंद्रिया नष्ट हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा. लेकिन एक चीज जो है वो नष्ट नहीं होगी. वो क्या है? भक्ति प्रभु. नहीं माता. एक चीज है वो नष्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ेगा. कर्म फल. आपकी इच्छाएं, हमारे और आपके अंदर जो प्रकट होने वाली इच्छाएं हैं, वह इच्छाएं भगवान संकर्षण की गगनचुंबी ज्वालाओं से भी समाप्त नहीं होगी. प्रलय हो जाएगा, हम मर जाएंगे, लेकिन वो इच्छाओं की तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो इतनी प्रभावशाली है कि वो कभी खत्म नहीं होती, राइट. And that is the reason we are keep on coming into this material world, because the desire is not getting satisfied. We are running towards satisfying the desire. हम जाते हैं किसी के पास, किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास, किसी धाम के दर्शन के लिए, तो हम क्या लेके जाते हैं? अरे कुछ इच्छा है, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा बेटे का घर बस जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा जो बिजनेस है 1 मिलियन का वो 10 मिलियन का हो जाए, मेरा प्रॉफिट 10 मिलियन से 25 मिलियन का हो जाए. This desire is gonna keep on coming. This desire is not gonna satisfy. और जब तक ये डिजायर है तब तक आपका जन्म लिखा हुआ है. भगवान कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा गीता में, कि भगवान कहते हैं कि समुद्र के अंदर उठने वाली लहरें होती है, उतने ही मैं तुम्हें जन्म दूंगा, क्योंकि तुझे वो जन्म चाहिए अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए. तो जब तक आपकी इच्छाएं रहेगी तब तक आपका जन्म चलता रहेगा, और वो इच्छाएं कभी भी नष्ट नहीं होगी. चाहे प्रलय आ जाएगा, भगवान वापस से सभी सृष्टि का नाश कर देंगे, आप सुषुप्त अवस्था में पड़े रहोगे जीवन के, आपका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, आप सिर्फ शुद्ध ऐसे पड़े जैसे बेबी पड़ा रहता है वूम के अंदर, लाइक दिस, बट योर डिजायर इज स्टिल देयर. इसीलिए जब वापस से सर्जन होगा तो वो डिजायर की वजह से आप वापस से जन्म लोगे. तो वो इच्छाएं जो है कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उस इच्छाओं को खत्म करने का एक ही कारण है, राइट. वह है भगवान की कृपा. जब भगवान संतुष्ट होते हैं तब उनकी इच्छा से और उनकी कृपा से यह भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है, वरना तब तक आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती. इसीलिए भगवान श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव जी महाराज से कहते हैं कि जब मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूं तब मैं उसके अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को नष्ट कर देता हूं, उसके साथ साथ मैं उसकी भोगने की लालसा, भोगने की इच्छाओं का भी वर्ण कर देता हूं, जिसकी वजह से उसको वापस नहीं आना पड़ता. इसी को समझने के लिए 12वां स्कंद भगवान ने दिया है प्रलय अर्थात निरोध, कि अगर हम अपने जीवन का सही उपयोग करें, ना करें, सत्संग और वैष्णव सेवा के माध्यम से, राइट, भगवान की कृपा प्राप्त न करे, तो क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चक्र लगा रहेगा, क्योंकि हमारे वजूद का कारण है हमारी अनवांछित इच्छाएं, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए करोड़ों करोड़ों बार हमें जन्म लेना पड़ेगा, राइट. जैसे मैंने कहा, ब्रह्मा की रात्रि के काल में जब हम सुषुप्त अवस्था में रहकर वापस जागृत होकर वापस हमें आना पड़ेगा, केवल इसी इच्छा के कारण, राइट. तो फिर इस इच्छाओं से मुक्ति कैसे हो, राइट. हमें लगता है कि बड़े बड़े पंच महाभूत शक्तिशाली, बड़े बड़े देवता शक्तिशाली, पर उन सबसे शक्तिशाली कौन है? आपके साथ बैठा हुआ वह तिलकधारी वैष्णव, क्योंकि उसकी कृपा से आप भागवत कृपा प्राप्त करने के अधिकारी बनते हो. कैसे भैया, कैसे? वह वैष्णव आपको भगवत प्रसाद देगा, आपसे कथा कीर्तन करवाएगा, अपने संग के माध्यम से आपके अंदर भक्ति रूपी बीज को बोता है. वो उसी के संग से उसी बीज का फिर पोषण होता है और संरक्षण भी होता है, क्योंकि व्हेन यू डू द डिवोशन यू आर डूइंग सो मेनी अपराध. उस अपराध की समझ आपको कहां से आती है?
उस वैष्णव सत्संग की वजह से, उसकी कथा के माध्यम से, और किसी ना किसी और उसी के सत्संग से एक दिन वह बीज जो है, जो उसने आपके अंदर बोया है, भक्ति रूपी बीज, वो एक लता में परिवर्तित होगा, अर्थात एक पेड़ बनेगा। और उस लता के ऊपर जब आपके भाव रूपी पुष्प खिलेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी सुवास, उसकी मधुरता भगवान को विवश कर देगी आपसे मिलने के लिए। तो ज्ञान फेल हो सकता है, नॉलेज इज गोना बी फेल, कहीं ना कहीं ज्ञान ही भूल कर देगा। कर्म निष्फल हो सकते हैं, आपके कर्म गलत डायरेक्शन में गए, यू विल बी डिस्ट्रॉयड। तो ज्ञान निष्फल हो सकता है, कर्म निष्फल हो सकता है, लेकिन भाव और भक्ति कभी निष्फल नहीं होगी। वो आज नहीं तो कल विवश करेगी भगवान को आपके समक्ष आने के लिए। इसीलिए तो देयर इज अ वेरी गुड कंपोजिशन की जिनके चरण कमल को कमला के करतल से ना निकलते देखा। जिनके चरण कमल अर्थात चरण कमल भगवान के चरण, जिनके चरण कमल, कमला अर्थात माता लक्ष्मी, जिनके चरण कमलों को कमला के करतल, करतल अर्थात हाथ, तो माता लक्ष्मी के हाथ से जिससे चरण कमल को माता क्या करती है, चंपी करती है भगवान की। तो कभी देखा है नारायण को उस चरण कमल को कमला के करतल से निकलते हुए? नहीं। लेकिन ये भाव और भक्ति है ब्रजवासियों की, जिसकी वजह से वो व्रज में दौड़े चले आते हैं। इसीलिए जिनके चरण कमल को कमला के करतल से ना निकलते देखा, उनको व्रज की करिल कुंज में नंगे पांव टहलते देखा। वो व्रज में ऐसा क्या है कि वो नंगे पांव टहलते हैं? यही भाव और भक्ति ही पड़ी हुई, और कुछ नहीं, राइट? Okay, so we'll do the last, which is called Mukti and Ashraya. So Mukti Ashraya अर्थात मुक्ति और आश्रय। मुक्ति जो 11वें स्कंद का मुख्य लक्ष्य है, 11वें स्कंद में भगवान ने मुक्ति के बारे में विशेष रूप से बताया गया, और आश्रय जो 10वें स्कंद का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जीव मात्र का आश्रय। देखिए श्रीमद् भागवतम महात्म्य में श्लोक आता है कि दशमस्य विशुद्धि अर्थम नवानामी हलक्षणम वर्णयन्ति महात्मनः श्रुतेन अर्थेन अंजुसा। कि दसम स्कंद में आश्रय तत्व को और गहरे रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो श्रीमद् भागवतम का जो ज्वेल है, वो बोलते हैं ना, अंगूठी के ऊपर एक सॉलिटर रहता है, सॉलिटर इज द मेन डायमंड। वैसे ही श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंदों के अंदर जो 10वां स्कंद है वो सॉलिटर डायमंड है, राइट? तो 10वें स्कंद में आश्रय तत्व को गहरे रूप से समझाया गया है, हमारे समक्ष लाया गया है। अन्य सभी जो स्कंद है, पूरे 9 स्कंद, वो इसीलिए कहे गए हैं कि आप भगवान कृष्ण के आश्रय तक पहुंचो, आपके अंदर वो लालसा जागृत हो भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की, राइट? तो 10वें स्कंद तक आप पहुंचो, फिर 10वें स्कंद की कथा के माध्यम से मानो कृष्ण आपको पुकार रहे हैं, समझा रहे हैं कि जन्मों जन्मों तक तुमने अलग अलग परिस्थितियों के साथ, वस्तुओं के साथ, व्यक्ति के साथ एक परफेक्ट संबंध जोड़ने की तुमने कोशिश की, या कुछ जगह तूने क्षणिक सुख प्राप्त करने का स्वप्न देखा या कल्पना की। उसकी तुलना में तू मेरे साथ अर्थात कृष्ण के साथ क्षण भर का ही सही, फॉर द मोमेंटरीली, एक अपूर्ण, संपूर्ण भी नहीं, अपूर्ण संबंध जो, तो क्या होगा उससे? इम्परफेक्ट रिलेशनशिप विद कृष्णा is better than perfect relationship with anyone in this world. That is the bottom line of 10th canto. 10th canto की जितनी भी कथा है, जितनी भी लीला है, उस सबका निचोड़ अगर कहा जाए तो इस वन स्टेटमेंट है। भगवान कह रहे हैं कि तूने अलग अलग परिस्थितियों में बहुत सारी वस्तुओं के साथ, बहुत सारे व्यक्ति के साथ परफेक्ट संबंध जोड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? आज नहीं तो कल तुम्हें उसकी निराशा प्राप्त होगी। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तू मेरे साथ परफेक्ट रिलेशन जोड़, भगवान कह रहे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तू मेरे साथ सिर्फ मोमेंटरीली, टेम्पररीली, एक संपूर्ण भी नहीं, परफेक्ट भी नहीं, अपूर्ण, इम्परफेक्ट संबंध जोड़ने की कोशिश कर। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, क्योंकि इम्परफेक्ट रिलेशनशिप विद कृष्ण इज फार बेटर देन परफेक्ट रिलेशनशिप विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। ये 10वां स्कंद का सार है। 10वां स्कंद सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग का, जो श्रीमद् भागवतम के मंगलाचरण में भी आता है कि अहो बकियम स्तनकाल कूटम जिगम्पि यस्या पयादपि साधु लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम किम वा दयालु शरणम व्रजेम।
कि देखिए विवाह के समय, आप नौकरी के समय, मित्रता के समय, बिजनेस करते समय, पार्टनरशिप करते समय, किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं तो एक भय लगा रहता है कि क्या होगा, राइट? पर यहाँ मानो भगवान एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एक विज्ञापन कर रहे हैं कि मुझसे संबंध स्थापित कर, चाहे वो क्षण भर का ही सही, तो निराश नहीं होगा। इस श्लोक के माध्यम से क्या है इस श्लोक में कि देखिए पूतना भगवान को कालकूट विष लगा के भगवान को खान पान कराने के लिए गई। तो यहाँ पे पूतना क्या है, राक्षसी है। उसका मोटिव क्या है, भगवान को मारना, लेकिन उसने वेश कौन सा लिया, सेवा का। उसने आश्रय क्या लिया, सेवा का, राइट? सेवा का आश्रय लेके उसने किसकी फॉलो कॉपी की, माता यशोदा की या माता की। तो देखिए भगवान ये नहीं देखते, देखिए ये इम्परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। भगवान तो यही देखते हैं कि भैया चलो माता बनके तो आई, मुझे कुछ अर्पण करने तो आई, मेरी तो कुछ सेवा करने तो आई। चाहे वो विश तो भगवान देखते नहीं क्या लेके आए, हम पहले क्या देखते हैं, गिफ्ट में क्या दिया, अच्छा कितने का गिफ्ट है ये, कितने डॉलर का है ये, अच्छा सेल में था क्या ये, हाँ तभी दिया होगा। वी सी द अमाउंट ऑफ द गिफ्ट एंड वी, उसके हिसाब से हम उसके भाव का मूल्यांकन करते हैं। भगवान उसके विपरीत है। भगवान ये नहीं देखते गिफ्ट में क्या लाई, विश लाई, अरे छोड़ ना, विश इसी संसार से प्रकट हुआ है ना, कुछ खीर लेके आएंगे, कोई विश लेके आएगा। भगवान ने ये देखा खीर भी इसी जमीन से प्रकट हुआ है, विश भी इसी जमीन से प्रकट हुआ है, मुझे खीर लेना है, ये कुछ अलग लेके आई, विश लेके आई। तो भगवान ने ये नहीं देखा क्या लेके आई, भगवान ने देखा कि अच्छा सेवा करने आई, वेरी नाइस। माँ बन के आई, ओह मेरी माता बन के आई, वेरी नाइस। सो शी ट्राई टू डू बैडली, बट भगवान उसके अंदर देखते इम्परफेक्ट रिलेशनशिप फॉर द मोमेंटरली। वो हर दिन खिलाने के लिए नहीं गई, सिर्फ एक दिन खिलाने के लिए गई। सो मोमेंटरली, टेम्परली एक इम्परफेक्ट रिलेशनशिप उसने भगवान के साथ जोड़ना था, लेकिन भगवान ने क्या किया, मातु की गति देई कृपालु यादव राय, उसको अपनी माता का स्थान दिया गोलोक वृंदावन में, राइट? इसीलिए सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, वो गदगद हो जाते हैं, उनका जो कंठ है वो भर जाता है। वो कहते हैं परीक्षित महाराज से थी, हे राजन, जिस पूतना को ऐसी गति दी भगवान ने, तो सोचिए वृंदावन की जितनी महिलाएं हैं, जितने गोवत्स हैं, जितनी गायें हैं, उनको भगवान ने कौन सी गति दी होगी। तो सोचिए जिन्होंने भगवान को गोवर्धन में नित्य नवीन अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाए, भगवान उनके लिए क्या डिसाइड कर चुके होंगे। या जो भगवान को हर दिन भोग लगाते हैं, अपने खाने से पहले भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान उनको कौन सा डेजिग्नेशन देंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट श्रीमद् भागवतम, जो एंटायर अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण भूतय मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्त्याश्रय, ये सभी शब्द श्रीमद् भागवतम के अंदर क्या क्या विषय डिस्कस होने वाला है, उन सभी विषयों का समन्वय, राइट? So we'll stop here, 11:18.